Today I will continue the topic magnetic effect of electric current. As you can see on the board, this is my lecture number 3. Before this I have discussed about Lorentz force as well as the source of magnetic field as well as the rules that governs the magnetic field and force directions. Okay, so you can watch that videos that are given in my channel, and today I will start the next topic, which is the trajectory of charged particle in electromagnetic field. Okay, let us take some cases. As I told you, the Lorentz force is generated when a moving charged particle is in the effect of electromagnetic field. That means there is an electric effect, electric field, as well as magnetic effect, that is presence of magnetic field. Okay, the difference between the two fields is that here if the charge is stationary, then electrical force is generated, and if the charges are moving, then electrical force as well as magnetic force is generated. Okay, so we will discuss about the trajectory of charged particle in electromagnetic field. So let us take some case. We can assume that first case, that electric and magnetic field these two fields are present and they are perpendicular to each other. Okay, so this is my case number 1. Electric and magnetic field are present and they are perpendicular to each other. So if this situation holds, then we can consider the case like here. This is y-axis, this one is x-axis, and this one is z-axis. So let us take the case that electric field is towards the y-axis. This is a uniform electric field. It is towards the y-axis, and a charged particle which is plus q, it is moving towards the x direction with velocity v. We have discussed f is equal to qvb sine theta, or we can written it as qv cross b. ऐसा लिख सकते हैं v क्रॉस b, जिसको हम लिखते हैं vb sin थीटा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है, चार्ज प्लस q चार्ज मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द z डायरेक्शन. So these are the cases. This is magnetic field. Magnetic field is represented by B. I told you the unit of magnetic field is Tesla. Earth magnetic field is 0.3 Gauss. Both unit of magnetic fields are Gauss, Tesla, Weber per meter square, and one more is there on the basis of this formula. This is Newton per coulomb per meter per second. So we can convert it in the form of unit of magnetic field. So here we can see this, that electric field is here, so charged particle is moving in the x-axis. Then what will happen? That electric field applies some force, that is called the electrical force. Electric charged particle must move in the direction of applied field if it is positive in the case of electric field. But here there is not only the electric field, there is the presence of magnetic field too. And magnetic field is acting perpendicular to it. So what is the direction of B? What is the angle between the B and B? Here the angle between B and B is 90 degree. Z-axis and x-axis. So sin 90 is 1. That means there is a maximum force applied over this charged particle by the presence of this magnetic field. Got it? So what will happen? The force direction we can identify on the basis of right hand rule. You can apply the right hand sweep rule, or you can apply the Fleming's left hand rule. So what will happen? The charged particle motion, if the positive charged particle is here, then the charged particle motion is represented by middle finger,
the first finger or indicator finger indicates the direction of magnetic field, then the thumb indicates the direction of force. So magnetic field is towards z-axis, that is positive z-axis is outward to the board, and the charged particle is moving towards the x-axis. So here the direction of x-axis, and this one is the direction of z-axis. You can see this one, okay? You can see this my finger, and this finger indicator finger is outside the board. The middle finger is towards the right direction, here towards the positive x-axis, and the thumb is showing the direction of force here, so it is downward. So magnetic force is acting downward. This is Fm, magnetic force. And what should be the direction of electrical force? Electrical force on the positive test charge particle always acts in the direction of electric field. So electric force direction is towards y direction. So here the magnetic force is towards minus y direction and electrical force is towards the प्लस वाई डायरेक्शन. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो z डायरेक्शन बनाया हुआ है ये बोर्ड के प्लेन पे बना हुआ है, ये z डायरेक्शन है क्या? आउटवर्ड टू द बोर्ड, ओके. यहाँ पर माइनस z डायरेक्शन इनवर्ड टू द बोर्ड, y डायरेक्शन टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द बोर्ड, माइनस y डायरेक्शन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बोर्ड, right direction towards the positive x-axis, left direction towards the negative x-axis. So here the direction is towards the down direction, that is bottom of the board. That is why the magnetic force is acting towards minus y-axis. So on the equilibrium, under the equilibrium condition, what will happen? Forces should be balanced by each other. आपने कंडीशन पढ़ी है. इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? When all the forces acting over the charged particle must be in the balancing condition. That means we can say it Fm should be equal to Fe. Okay? How? Because these two are in opposite direction. अगर opposite direction में है और दोनों equal magnitude के हो जाते हैं तो obviously ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को nullify कर देंगे and v velocity maintain रहेगी. बॉडी पर net force नहीं exert हो रहा होगा. तो उस समय बॉडी की ट्रेजेक्ट्री कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे हम क्या डिस्कस करें? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है प्लस q, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस ही चलता रहेगा. यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा. चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूटी में मूव करता जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल कर देते हैं तो. ठीक है. सो पाथ कैसा हो गया यहाँ पर? पाथ should be, that means trajectory इसे हम कहते हैं, should be linear towards plus x axis. ये तो जो हम निकाल रहे थे वो डायरेक्शन आ गया. अब हम इससे रिजल्ट्स भी निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या आ रहा है. ओके. सो रिलेशन Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी? QVB sin थीटा. साइन थीटा यहाँ पर कितना हो गया? sin 90. यहाँ पे देखो b और v के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो sin 90 इज 1. QVB हो गया. Fe की वैल्यू कितनी है? Q इंटू ई. हमने चार्ज क्या लिया था? Q. ठीक है. तो अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कैंसिल एंड वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v एज E डिवाइडेड बाई b. सो दिस वन इज द result. That means the velocity should be the ratio of electric field to the magnetic field. If the trajectory of the charged particle is linear towards the x-axis. ये एक स्पेसिफिक कंडीशन निकल करके आ रही है कि चार्ज पार्टिकल लीनियर तभी होगा, उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से तब मूव करेगा जब वेलोसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के इक्वल है. गॉट इट. अब यहाँ पर आप इसको चेक भी कर सकते हो डायमेंशनली, जैसे आप फॉर्मूला चेक करते थे वेदर इट इज़ करेक्ट वन और नॉट. तो आप ये सिचुएशन जो होती है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर. यहाँ पर हम वेलोसिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर. ओके. और ये वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना होता है. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेलोसिटी सेलेक्टर यूज़ करते हैं और वही वेलोसिटी सेलेक्टर यहाँ पर E/B के रेशियो में आता है. सो ये जो आपने फार्मूला निकाला था V = E/B, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा. ओके. सो हियर Fm इज इक्वल टू Fe हमने सिचुएशन ली थी. अब इसी में हम दूसरा केस ले लेते हैं. केस 1
एक केस ये ले लेते हैं कि इफ एफएम इज लेस देन एफई, एक सिचुएशन कि क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कम है और इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, ठीक है, और एफएम की वैल्यू कम हो गई और एफई ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली ये बट श्योर है कि जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा हम वेक्टर से निकालेंगे, तो ये क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट आ रहे हैं, तो वेक्टर में जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट, दैट शुड बी इक्वल टू एफई माइनस ऑफ एफएम, एंड इट इज श्योर इट विल कम टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि यहाँ पर हो गया कि इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेटिंग है, तो आप यहाँ पर न्यूटन्स का लॉ अप्लाई करोगे। न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग बॉडी का मोशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स मूव करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज टूवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स किधर है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डोमिनेटिंग। तो जो नेट फोर्स डायरेक्शन है, नेट ट्रेजेक्ट्री होगी, वो किस तरीके से जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेटिंग है, और आपने फर्स्ट यूनिट में जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर यूनिफॉर्म होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पैराबोलिक मोशन करता है। आपने पैराबोला की इक्वेशन भी निकाली है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको आप समझ लो कि पैराबोलिक पाथ होना चाहिए, या ऐसे समझ लो कि इनिशियली तो ये इस तरीके से मूव कर रहा होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेटिंग है तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। रीज़न बिकॉज इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर यही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। So this one is the trajectory of the charge particle, positive charge particle under the effect of case number 1A when the Fm is less than Fm. Okay? अब next situation लेते हैं case number 2, case number 1B. If Fm is greater than Fe, अगर ये situation हो जाती है इसमें, तो आई होप वेलोसिटी सेलेक्टर आपको यहाँ पे क्लियर है। इस पूरे टॉपिक तो आप एक हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट हेडिंग इज वेलोसिटी सेलेक्टर। रिमेंबर दिस, क्योंकि हम यहाँ वेलोसिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। नाउ केस नंबर 1B में क्या होगा, Fm इज ग्रेटर देन Fe, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फोर्स से बड़ा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F net that should be equal to Fm minus of Fe, and the direction is towards minus y axis, ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और ये इधर जाएगा। इसका पाथ पैराबोलिक नहीं है, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन सर्कुलर हो जाता है, वो अभी हम आगे निकालेंगे कि क्यों ये पाथ, क्यों ये ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर आती है। तो यहाँ पर पाथ सर्कुलर हो जाता है और जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा। ओके, सो दिस वन इज द सर्कुलर पाथ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिचुएशन दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा, बट ऑब्वियसली ये सर्किल स्मॉल बनेगा और किस डायरेक्शन में होगा, -y के डायरेक्शन में होगा। So these are the related case. I hope these points are clear, and remember this thing again, I am repeating, this topic is termed as velocity selector. Got it? Now come to next topic, next case, that is the circular motion of charged particle in the effect of only magnetic field. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया। ओके, केस नंबर 2. So case number 2, charge particle in magnetic field,
that means here electric field is 0. We are not applying any electric field here. Then what will be the situation? What will be the trajectory of the charge particle? We are discussing about trajectory. ठीक है? तो हमने एक केस ले लिया that this is a cross field. ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा और बना लेते हैं, पाथ थोड़ा बड़ा दिखेगा. अब यहाँ पर इस क्रॉस्ड फील्ड में आपने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया. सबसे सिंपल सिचुएशन लो, क्योंकि आप लॉरेंज फोर्स पढ़ चुके हो. तो लॉरेंज फोर्स में क्यू वी क्रॉस बी का मीनिंग होता है कि अगर हमें क्यू वी भी चाहिए तो साइन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. वी क्रॉस बी का मतलब साइन थीटा, और थीटा अगर हम 90 डिग्री कर देते हैं इसका मतलब वी और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनाइए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, यहाँ पर अंदर की साइड है. ठीक है, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है. डॉट बनाते बोर्ड के बाहर आते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड के अंदर है. ठीक है, अब यहाँ पर बोर्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमें वेलोसिटी बनानी है, चार्ज पार्टिकल का मोशन बनाना है. तो दिस वन इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लिया है और ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. यहाँ पर ये परपेंडिकुलर शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में फोर्स अगर हम निकालते हैं तो 3 डायमेंशनल बॉडी हो जाती है. यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है वो बोर्ड के अंदर है, और जो ये चार्ज पार्टिकल है वो बोर्ड के प्लेन में ही मूव कर रहा है. एंड राइट नाउ द डायरेक्शन इज दिस वन एज शोन इन द फिगर. तो अगर ये सिचुएशन है तो हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है. आप स्विंग रूल भी लगा सकते हो. लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट. The charge particle is moving, positive charge particle is moving downwards. So this one along with the board, this one is inward, and the direction of thumb is towards the right direction. तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है? इधर. ठीक है, फोर्स इस साइड अप्लाई हो गया. अब आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, और उस पर फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई हो, तो चार्ज पार्टिकल के मोशन को, उस तरीके के चार्ज पार्टिकल के मोशन को हम कंपेयर कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में. क्योंकि लीनियर मोशन आपने क्लास 11th में कई टाइप के मोशन पढ़े थे. लीनियर मोशन में तो फोर्स और मोशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ अप्लाई होता है. लेकिन वो सिचुएशन क्या होगी जहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर है और बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, आप वो सिचुएशन देखो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स याद आएगा. सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में होता है, और चार्ज पार्टिकल के मोशन को, उसकी स्पीड को, उसकी वेलोसिटी को हम टेंजेंट टू एनी पॉइंट बनाते हैं. ये सर्कुलर मोशन है. इसमें हम यहाँ पर स्पीड किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे बताते हैं? इस पॉइंट पर अगर स्पीड निकालनी है सो वी विल ड्रॉ वन टेंजेंट वी. यहाँ पर ये स्पीड और कोरस्पॉन्डिंग इसका डायरेक्शन आ गया वेलोसिटी. अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो पार्टिकल या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो जिसका जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आएगा. अगर क्लॉकवाइज मूव कर रही थी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट से शो हो रही है एंड द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हियर द वेलोसिटी एंड द फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये सिचुएशन अगर आ रही है कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये ट्रेजेक्ट्री एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी. ठीक है, रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. अब यहाँ पर हमने पाथ बनाया कि ये चार्ज पार्टिकल इधर कहीं मूव कर जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं. अगर इधर की साइड में चेक करूँ तो इस पॉइंट पर, ये एक ए पॉइंट था, इस पॉइंट पर अगर चेक करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड टू द बोर्ड, अंदर है. ठीक है, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, स्पीड को टेंजेंट के डायरेक्शन में रखो, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब इज अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप मोशन, मीन्स अपवर्ड साइड. सो दिस वन इज फोर्स. अगेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सो यहाँ पर क्या होगा? सर्कुलर पाथ यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरीके से ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता हुआ अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच जाएगा. अब ये जो पोजीशन आ रही है इससे पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन है
और ये जो फोर्स है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हैं, ये एक काइंड का सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या करेंगे यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फोर्स है F, दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजेक्ट्री कैसी आई है? सर्कुलर। रिमेंबर दिस, ट्रेजेक्ट्री है सर्कुलर। ओके, अब इसमें हमने जो बैलेंसिंग कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। सो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। तभी बैलेंसिंग सिचुएशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी जो भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ है उसकी वैल्यू इस सर्कुलर मोशन के कोरस्पॉन्डेंस के सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m v स्क्वायर ओवर r। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, एंड fm इज इक्वल टू qvb। साइन थीटा आना चाहिए। साइन थीटा कितनी है यहाँ पर? साइन 90, विच इज इक्वल टू 1। क्यों? v और b के बीच में एंगल कितना है अभी? velocity और magnetic field is inward and velocity is towards in the plane of both, so that is why both are perpendicular to each other। okay? इस रिलेशन को सॉल्व करो तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है r का, r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई qv। ये r क्यों जरूरी था? ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब है हम उसके पाथ को बता रहे हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू यानी रेडियस कितनी बड़ी होगी वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मास पर, वेलोसिटी, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड पर। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक बार सेट कर दी, चार्ज पार्टिकल को भी हमने एक बार सेट कर दिया, स्पीड हमने इनिशियली दे दी और चार्ज पार्टिकल के मास एंड चार्ज वैल्यू को दोनों को सेट कर दिया। सो उसके बेसिस पर ही रेडियस आएगी। अब अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, तो आप ये बताओ कि दोनों में से किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और दोनों को सेम स्पीड से इंजेक्ट किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में इन द सेम सिचुएशन। तो आप यहाँ पर किस तरीके से निकालोगे कि सेम स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है दोनों के लिए, किस पर डिपेंड कर रहा है? मास एंड चार्ज पर। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? 2He4, और यहाँ इसका प्रोटॉन का मतलब क्या है? 1H1। ठीक है, तो मास में अगर आप देखो तो इसका मास 4 है, इसका मास 1 है, यानी 4 टाइम्स है किसके मास का? प्रोटॉन के मास का। इसका मास अल्फा पार्टिकल का। और चार्ज में अगर डिफरेंस देखो तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल है एज कंपेयर टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज डबल, मास 4 टाइम्स, तब भी 2 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर हम अल्फा के लिए निकालेंगे तो हम क्या रखेंगे? 4mv डिवाइडेड बाई 2qb, और एज कंपेयर टू प्रोटॉन यहाँ पे m, अगर मास प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m, v डिवाइडेड बाई qb। अगर प्रोटॉन का चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा? 2q। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल की रेडियस प्रोटॉन की रेडियस की, प्रोटॉन पार्टिकल की रेडियस की डबल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस कि अल्फा पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो बिगर होगा, 2 टाइम्स बिगर होगा दैन द प्रोटॉन। सो इस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं ट्रेजेक्ट्री से भी। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस इज वेरी सिंपल एंड यू कैन डू इट। आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, सर्कुलर मोशन में खाली आर मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है कि ये कितनी देर तक रोटेट होगा। अगर एक बार किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसके बाद वो चार्ज पार्टिकल कितनी देर तक रोटेट होता रहेगा, तो वो भी निकाला जा सकता है। दैट इज़ कितनी देर तक रोटेट होना, तो हम टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर हमें ये पता हो कि इसमें कितने टाइम्स रोटेट कर रहा है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकती है। ये सारा आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन का बेसिक जो फॉर्मूला आता है वो आता है a = -ω² y, आपने पढ़ा है।
तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ निकालते हैं, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ गई mv ओवर qb। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। हियर इस केस में क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन करने में, एक रिवॉल्यूशन करेगा तो इसका सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्किल है इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो अगर हम टाइम का बेसिक फॉर्मूला रखें तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड तो यूनिफॉर्म है, v स्पीड दी गई थी, v हमने एज सच लिख लिया। डिस्टेंस कितनी है? अगर हम टाइम पीरियड रख रहे हैं तो केवल एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। एक रिवॉल्यूशन में सर्कमफ्रेंस के इक्वल की डिस्टेंस है और सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? 2 पाई r, ठीक है। तो अब यहाँ पर r की वैल्यू को पुट कर दो आप, 2 पाई डिवाइडेड बाई v, r की वैल्यू कितनी है? mv डिवाइडेड बाई qb। तो कितना रिजल्ट आ जा रहा है? v तो कैंसिल हो गया। इससे ये भी एक कंक्लूजन निकल कर के आ रहा है कि टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी आप चाहे कम स्पीड से पार्टिकल को डालो चाहे ज़्यादा स्पीड से डालो तो टाइम पीरियड दोनों का सेम हो सकता है, ठीक है। दिस इज अनदर फॉर्मूला टाइम पीरियड का। किस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड? बेसिकली मास और चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, यानी एक पार्टिकल अगर हम डालेंगे तो उसका मास और चार्ज फिक्स है। अगर हम यहाँ फिर से प्रोटॉन और दैट इज अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे तो मास इज 4 टाइम्स एंड चार्ज इज 2 टाइम्स, तो फिर से यहाँ पर डबल वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब टाइम पीरियड भी डबल है। अगर अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बड़ी है, उसका सर्किल बड़ा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो उसका टाइम पीरियड भी बड़ा है। टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 2 पाई m, यानी डबल आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। This point is clear to you? Now come to next point. हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है, सर्कुलर मोशन हो या SHM हो या किसी भी टाइप का पीरियोडिक मोशन हो, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होते ही है। स्पीड ऑफ मोशन होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन टाइम पीरियड कम है। अगर बहुत स्लो मोशन है तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू 1/t। कितना आया था t की वैल्यू? 2 पाई m डिवाइडेड बाई qb, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो गया। सो दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, आपको मैं वो कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी सो दैट यू कैन गेन इंफॉर्मेशन। फिर भी मैंने आपसे जैसे पहले कहा था न्यूमेरिकल के लिए कि न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं है एंड यू आर द ड्राइवर ऑफ न्यूमेरिकल व्हीकल, ठीक है। आप ही को करने न्यूमेरिकल्स, मैं आपको गाइड करूँगी, ओके। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी एट एनी टाइम, ओके। सो दिस वन इज द केस नंबर 2। इसी में केस नंबर 2 में ही हम एक सिचुएशन लेते हैं कि हम केस में एक बी केस, इसमें ए केस इसको आप अगर समझ रहे हो तो बी केस एक ले लेते हैं, ठीक है। इसी का बी केस, सेकेंड का बी, वो बी केस है कि अभी तक आपने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ज़ीरो किया हुआ ऑलरेडी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल आ रहा था, ठीक है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द बोर्ड है तो उसको मैं इस तरीके से बोर्ड के प्लेन में अगर बनाना चाहूँ तो इस तरीके की सिचुएशन थी। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आ रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। ये परपेंडिकुलर था, एग्जैक्टली 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। अब इसी सिचुएशन को हम बी केस में रिवर्ट कर देते। ये ए सिचुएशन थी, ए केस था, इसमें हमने r निकाला, रेडियस निकाली, टाइम पीरियड निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली।
अब हम नेक्स्ट केस में निकालेंगे कि अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैं बोर्ड के प्लेन में दिखा रही हूँ एक्चुअली ये क्रॉस है, इनवर्ड टू द बोर्ड, समझ रहे हो। 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसको 2 डायमेंशनल में लाने के लिए एक बार बोर्ड के प्लेन में दिखा दे रहे हैं या एक बार बोर्ड के प्लेन के अंदर, ठीक है। बाहर वाली चीज़ों को हम बोर्ड पे तो नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पर बोर्ड के प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हमने अभी एट दिस पॉइंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से दिखाया हुआ है। पहली सिचुएशन ये थी जब परपेंडिकुलर था, दूसरी सिचुएशन ऐसी है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। किस एंगल पर? ये है थीटा एंगल, ये है थीटा एंगल, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं होने पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कौन सा है, थीटा। तो हम मैथमेटिकली अभी इसे सॉल्व भी करेंगे, थीटा को इस तरीके से नहीं लेंगे कि यहाँ पर थीटा है तो आर निकाल दिया तो वो थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी ट्रेजेक्ट्री। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजोल्यूशन अप्लाई करेंगे। क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ v, किसका रिजोल्यूशन कर रहे हैं, वेलोसिटी का। तो रिजोल्यूशन करने पर क्या होगा, अगर ये थीटा है तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हमने वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, कंफ्यूज मत होना, कई बुक में ऐसे दिया हुआ है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v परपेंडिकुलर लिखा है। क्यों लिखा है v परपेंडिकुलर, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसे v परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी v परपेंडिकुलर लिखा है। आप इसको हॉरिजॉन्टल लिख सकते हो, आपकी कन्वीनियंस पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि v वर्टिकल, मैं इस तरीके से आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख दे रही हूँ, आप इसे v पैरेलल और v परपेंडिकुलर भी लिख सकते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और पैरेलल मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन तब आती है जब आप लेते हो कि अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो साइन क्यों आ गया। अब यहाँ पे देखो थीटा किससे बन रहा है, इस वर्टिकल कंपोनेंट से बन रहा है। तो आपने पढ़ा है कि cos थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहाँ से एंगल अटैच होता है, ये ट्रायंगल बना दे रही हूँ, ये थीटा है, ये v है, v जो एंगल बना रहा है वो कितना है, थीटा, और यहाँ पर v वर्टिकल है, ये v हॉरिजॉन्टल है, गॉट इट। अब यहाँ पर देखो तो v वर्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम cos थीटा लेते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी v ओवर v, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी होगी, v cos थीटा, ऑब्वियसली v h की वैल्यू हो जाएगी v sin थीटा, ठीक है। आपके ये 2 कंपोनेंट निकल करके आ गए। अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल होता तो सेम ये एक केस वाली सिचुएशन में रहती, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने एक केस में सॉल्व किया कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, सर्कुलर। तो यहाँ पर सिंपल केस कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बेसिस पे यहाँ पे सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगी बॉडी। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो आपने पहले देखा था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन आता है, ये भी आप लोग नोट कर लो। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ये भी पूछा जाता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्लॉकवाइज मोशन, ऑपोजिट हो जाएगा पहले वाले केस का, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन होगा लेकिन क्लॉकवाइज होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन होगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। रिमेंबर दिस, हर केस में नहीं। जिस फील्ड को हमने एज्यूम किया था यहाँ पे क्रॉस फील्ड थी यानी इनवर्ट टू द बोर्ड, तो उस केस में ही यहाँ पर पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्लॉकवाइज मोशन। अगर यही फील्ड डॉट बनी होती यानी आउटवर्ड टू द बोर्ड तो ऑपोजिट हो जाता, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ये क्लॉकवाइज मोशन हो जाता और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो जाता। तो रटना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, ओके। यहाँ पर वी
v cos थीटा और vh v sin थीटा आ रहा है। ये शोर है कि vh जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर vv किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जितने टर्म्स हमने पढ़े थे उसमें हम v की जगह पर रख देंगे, v की वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे vv, ठीक है। यानी पहला टर्म जो आया था वो था r विच इज इक्वल टू mv ओवर qb। इसकी जगह पे हमें रखना होगा vh, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, बिकॉज द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट इज व्हाई इन प्लेस ऑफ ओनली v वी विल प्लेस vh। नाउ vh की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो, vh इज v sin थीटा, सो mv sin थीटा डिवाइडेड बाई qb। जो पहला फॉर्मूला था उसमें sin थीटा भी आ गया, वहाँ पर था mv ओवर qb, यहाँ पर आएगा mv sin थीटा ओवर qb। उसके बाद आपने निकाला था टाइम पीरियड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या था 2 पाई m ओवर qb। यहाँ पर वेलोसिटी का कोई रूल नहीं है, नो चेंज इन टाइम पीरियड। आफ्टरवर्ड नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी विच इज qb डिवाइडेड बाई 2 पाई m, तो वो भी एज सच रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। किसमें फर्क पड़ेगा? रेडियस में। तो रेडियस वेरी करेगी, ऑब्वियसली पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जो 90 केस लिया था तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू थी, यहाँ पर 90 नहीं है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं होगी। सो रेडियस कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको चेक कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर कोई भी वेलोसिटी आ जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फार्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, पैरेलल के लिए 0, फोर्स कितना हो गया 0। आपको मैंने बताया था लॉरेंज फोर्स में कि कौन सी 3 सिचुएशन है जहाँ पर फोर्स 0 हो सकता है। यहाँ पर साइन 0 के लिए फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट पे, इस वर्टिकल कंपोनेंट की बेसिस पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या होगा, बॉडी जो है वो ईजिली उसी वे में मूव करती रहेगी जिस वे में वो मूव कर रही है। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो अप्लाई होता है वो कहता है फोर्स अगर अप्लाई नहीं हो रहा है और बॉडी मूव कर रही है तो वो वैसे ही मूव करती रहेगी जिस स्पीड से वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वर्टिकल कंपोनेंट के बेसिस पर सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी अपने ही पाथ पर नीचे आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ लाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हुए नीचे जाएगा, एंड इन दिस वे ये मूव करता जाएगा जहाँ तक कि मैग्नेटिक फील्ड गई होगी, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पर ये जो पाथ बन रहा है दिस इज नॉट एग्जैक्टली सर्कुलर, इट इज़ हेलिकल पाथ। दिस मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। तो जो केस बी है, इन द केस बी द ट्रेजेक्ट्री here is helix in case B। केस ए में क्या थी, एग्जैक्टली सर्कुलर, केस बी में हेलिक्स है, ठीक है। तो इस हेलिक्स में हम ये निकाल सकते हैं कि एक सर्कुलर मोशन के बाद नेक्स्ट सर्कुलर मोशन कब आ रहा है, कितनी डिस्टेंस के बाद आ रहा है, कितने टाइम के बाद आ रहा है, समझ रहे। तो वो जो लीनियर पाथ है दिस वन, इस लीनियर पाथ को निकालने की क्या जरूरत है, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। एक सर्किल के बाद जो नेक्स्ट सर्किल स्टार्ट हुआ, एक सर्किल ये है फर्स्ट सर्किल, उसके बाद नेक्स्ट सर्किल कौन सा है, दिस वन, ये है सेकंड सर्किल। तो फर्स्ट और सेकंड सर्किल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। पिच क्या होती है, आपने जब फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था स्टीरियो गेज का, वर्नियर कैलिपर्स का, तो उसमें लीस्ट काउंट के लिए आप पिच निकालते थे। पिच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोज डिस्टेंस या कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस या कॉन्सिक्यूटिव मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मेन स्केल जो आपकी होती है, मेन स्केल में अगर आप पिच लेना चाहो, ठीक है, तो वो पिच की वैल्यू आती है 1 सेंटीमीटर,
क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन स्केल होती है, जो आपकी स्केल होती है, जो बॉक्स में रखी हुई होती है स्केल, उसमें 15 सेंटीमीटर तक की रेंज दी हुई होती है, जिसमें हर एक 1 सेंटीमीटर पे वैल्यूज़ लिखी होती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो जो मेजर्ड वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। 1 से 0 से लेकर 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से लेकर 2 तक 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम मेजर्ड वैल्यू इन बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव मेजर्स। तो वो 1 सेंटीमीटर क्या है? उस मेन स्केल की पिच है, ठीक है, विच इज़ द मिनिमम मेजर्ड वैल्यू इन बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर पिच जो है वो क्या कहेंगे, इसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस P रिप्रेजेंटिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या आप इसे वर्टिकल भी कह लो, वर्टिकल डिस्टेंस इन बिटवीन द 2 सर्कुलर मोशन, कॉन्सिक्यूटिव सर्कुलर मोशन। व्हाट इज पिच? Pitch here is the linear distance, vertical या horizontal की जगह आप linear लिख लो, linear distance in between 2 consecutive circular motion। किसी भी 2 सर्कुलर मोशन के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम पिच कह रहे हैं यहाँ पर, और उसी को पिच कहा ही जाता है। जैसे मैंने आपको स्केल का एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पर अगर हमें पिच निकालना है तो पिच इज़ लीनियर डिस्टेंस, पिच इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या आ रहा है, यहाँ पर वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल तो आपने वो रखा था जो हॉरिजॉन्टली था, एक्स एक्सिस में था, आपने वर्टिकल वो कौन सा पाथ रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी यही तो रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी को वर्टिकली नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पिच की वैल्यू क्या लिखोगे? पिच इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कौन सी होगी? वेलोसिटी वर्टिकल। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इस सर्कुलर पाथ के बाद चार्ज बॉडी को नीचे लाने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर v वर्टिकल हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्टेंस, पिच इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कितना है? एक हॉरिजॉन्टल पाथ कवर होने में लगता है t टाइम पीरियड, उसके एग्जैक्ट बाद नेक्स्ट सर्कुलर पाथ कवर अप शुरू हो जाएगा। मीन्स क्या है, फिर से मैं बताती हूँ, एक सर्कुलर पाथ कवर अप करने में t टाइम पीरियड लगता है, तो एग्जैक्टली t टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टाइम इन दोनों के बीच में उतना ही लग रहा है जितना कि एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में टाइम लगता है। सो दैट इज व्हाई द टाइम पीरियड हियर इज t। सो पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो वेलोसिटी कौन सी है? वर्टिकल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। नाउ वर्टिकल वेलोसिटी आपने लिखे थे v cos थीटा, सो v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m ओवर क्यू बी। सो 2 पाई m ओवर क्यू बी, ये फॉर्मूला हो गया पिच का, ठीक है। अब पिच के केस में देख लो, वेलोसिटी अगर दी गई है तो चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है कि वो पिच कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी, ओके। सो ये पिच का फॉर्मूला जो cos थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा एंगल पर डिपेंड कर रहा है, किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, एंड आपके वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास एंड चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कितने टर्म्स हैं जिस पर ये पिच वैल्यू डिपेंड करती है। तो पिच जो होता है वो होता क्या है, वो आपको ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेनी है, इसको समझ लो। एंड ये सारे डेटा उस केस में हैं जब थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का। सो दीज आर द ट्रेजेक्टरी रिलेटेड टर्म्स व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, and in my next class I will discuss about cyclotron. So that's all for today. Enjoy your day and keep revising with me. Thank you.